नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे, इसी कामना के साथ स्टूडेंट लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। वी हैव ऑलरेडी talk about this cellular respiration. Mean whenever the respiration process will take place inside the cell, and it can be always helpful to provide the energy for other purposes. So we can say generally the cellular respiration will occurs or take place in all living cells, and with the help of some specific type of enzymes. And during this process, there is a first step of this process to break down the glucose, right? That is known as the glycolysis, or we can say directly, we can say the oxidization of the glucose into the pyruvic acid, right? And after that pyruvic acid, that pyruvate can enter into the Krebs cycle, especially in the aerobic respiration. And whenever such process will take place in the anaerobes, that is called the fermentations. So this process is very important. If we talk about directly about the glucose or the breaking down of the glucose, or that is called the glycolysis, this process will always take place in the cytoplasm of the cell. If we can according to what we can say, glycose means the sugar and lysis means the splitting, the breakdown. So we can say the different stepwise the breaking of this molecule of glucose that contains 6 carbon into the simple pyruvic acid, that is the 3 carbonic substances. Especially generally this process was first given by the 3 scientists, that is Gustav Embden and Otto Meyerhof and J. Paranas. So according to that's why they have given the such process, they can be just give a small name, that is we can say EMP pathways. Means sometimes the glycolysis process is also known as EMP pathways on the basis of the name of scientists, that is Embden and Meyerhof and the Paranas. Shortly they are given the such process over there. Evenly this process will take place into the cytoplasm of the cell. At the time of this process, the glucose get partially oxidized, right? And especially in the plants, they can be derived from the sucrose, right? Which can be generally developed during the photosynthesis as the carbohydrate, right? Or we can say this process in the plants, especially with the help of sucrose, it can be converted into the glucose first, then it can be changed into the fructose by the action of an enzyme that is called invertase enzyme, and due to which it can be just changes to monosaccharides, that is glycotatric pathways, in with the help of this process. Especially if we can talk about the different steps of this glycolysis process, right? So this process can be involved very at least 10 steps over there. We have to just memorize all those steps because they are very important in the point of view. Generally we can say to simply the conversion of the glucose, directly we can say the conversion of the glucose into the pyruvate, a 2 molecule of the pyruvic acid, that is called the glycolysis. That this reaction can be take place within the 10 steps. The first process, that is called the phosphorylation. What about that phosphorylation? We have to know about this phosphorylation. Means generally if we can talk about that so many times this phosphorylations, means we can say the glucose with the help of an enzyme, we must know and that name, with the help of an enzyme that is called hexokinase, and substance and minerals magnesium, which can give rise to change the glucose 6 phosphate by the utilization of ATP energy. Means generally we can say, first of all, whenever the glucose can be converted by the adding of the addition phosphate, generally first of all you know that what is phosphorylation. Phosphorylation means whenever any phosphate group can be added, right? That is called the phosphorylation. जनरली अगर आपने देखा होगा, अगर हम सिंपल से एक बात करें कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, तो उस सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन में कंडीशन में क्या होती है, जब ग्लूकोज
ब्रेक कर रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो ATP में, राइट, जब उससे डायरेक्ट ATP का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। मीन्स जनरली मान लीजिए ATP है, उस ATP में अगर एक इनोनिक फॉस्फेट और जुड़ जाए, राइट, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड ATP, राइट। सो generally we can say during this phosphorylation where we can say especially whenever in that particular conditions they can be consumes an ATP energy and that glucose can be changes into the glucose 6 phosphate, so that is known as the phosphorylation because the phosphate is added over there। अभी तक हमारे पास ग्लूकोज था लेकिन जब उसमें फॉस्फेट ऐड हो गया तभी हमने उसको क्या किया, दैट प्रोसेस नोन एज phosphorylation। After that there is another step that is called isomerization। Especially with the help of this we can say directly the phosphorylated glucose 6 phosphate it can be take place to form a fructose 6 phosphate। सिंपली अगर हम इसको ऐसे समझे बेटा कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज में एक फास जुड़ा, ये एक फॉस्फेट जुड़ गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब उसमें क्या किया हमने, उसको कन्वर्ट कर दिया किसी और चीज़ में। सपोज हमने उसको आइसोमराइजेशन कर दिया उसका, तो फ्रुक्टोज बना दिया, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से अगर एक एनर्जी हमारा एक मॉलिक्यूल और ऐड हो जाए तो उसके बाद इट कैन कैपेबल टू फॉर्म द फ्रुक्टोज 1,6 biphosphate as you can just especially seen into the diagrams। This is called right the fructose 1,6 because ATP can be break down into ATP, it means that one phosphate can be added within this fructose 6 phosphate। fructose 6 phosphate में एक के ऐड होते ही क्या हो गया, it can be converted into the fructose 1,6 biphosphate, right। Later on after that it can be again done another thing, right। What about that one? In that particular thing this can be again breaks, right, means fructose 1,6 biphosphate can again breaks and it can be becomes a simple कार्बोनिक substance that is called triose phosphate or triose phosphate। triose phosphate क्यों कहा है इसको, because this triose phosphate contains 3 कार्बन कंपाउंड्स, राइट। अब लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जब कभी भी हम किसी भी ग्लूकोज से एसिड बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इट शुड बी चेंजेस इनटू द एल्डिहाइड एंड आफ्टर दैट इट शुड बी चेंजेस इनटू द एसिड। ये हम प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वी हैव टू नोन दैट इन दैट व्हेनेवर दिस फ्रुक्टोज 1,6 base phosphate can be changes into 2 compounds that maybe you can say पागल, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें पागल में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज दैट पागल, दैट इज वी कैन से फॉस्फोग्लाइसिड एल्डिहाइड। पागल मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो उसे क्या गया, ग्लाइसिड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इन द सेम वे दूसरी तरफ भी हमारा क्या बना है, वहाँ पे भी हमारा पागल जैसे कंपाउंड बनेगा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो उसमें वहाँ पे कीटोन ग्रुप लग जाएगा, इसलिए हम दूसरे कंपाउंड को कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इट कंटेन्स 3। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि जो ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट होगा और जो डाईऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा ये आपस में सेम टू सेम चेंजेस हो सकते हैं। और इसी समय जब बाहर से एक फॉस्फेट और इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो यही फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड, राइट, दैट कैन बी चेंजेस इनटू द अनदर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसिक एसिड, राइट। यानी कि अब यहाँ से हमारी रिएक्शन तो डबल चलेगी। एक तो आपके सिंपली यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी आप पागल की रिएक्शन चला सकते हैं, यानी फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड की रिएक्शन चला सकते हैं, और एक रिएक्शन यहाँ से चलेगी। तो इस तरीके से हमारे 2 पायरुविक एसिड तब जाकर के हमारे 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड बन पाएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से सेम मैकेनिज्म से ये प्रोसेस हमारी आगे बढ़ती है। तो जिसकी मदद से अब यहाँ पर जो हमने एक एडिशनल अभी हमने क्या किया था, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया था, अब हम एक्स्ट्रा जोड़ा था तो उसको हम हटा भी सकते हैं। जब एक्स्ट्रा जोड़ा था तो क्या बन गया, 1,3
फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड बन गया। तो उसमें अगर हम ADP से यहाँ पे ATP के रूप में एनर्जी चेंज करें, तो जब एनर्जी चेंज होगी तो इट कैन अगेन चेंजेस इनटू दैट फॉर्म्स द ATP इनटू द ATP। तो आपका जो एक्स्ट्रा वाला फॉस्फेट जो जुड़ा होता है, इट कैन बी रिलीजेस, सो इट कैन अगेन फॉर्म्स और चेंज इनटू द 3-phosphoglyceric acid in that particular condition, and after that it can be changed into the 2-phosphoglyceric। जब एक निकल जाएगा इसमें से तो क्या बन जाएगा, 2-phosphoglyceric aldehyde बन जाएगा। अब इस phosphoglyceric aldehyde में से जब ATP एनर्जी लगेगी प्लस उसमें वाटर हट जाएगा, वाटर अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के निकलते क्या होगा, इट कैन बी चेंजेज इनटू फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट, एंड दैट फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट में दोबारा से अगर हम ADP से ATP में कन्वर्टेशन करा देंगे तो वहाँ से एक और फॉस्फेट निकलेगा, तो जिसकी वजह से इट कैन बी चेंज इनटू द पायरुविक एसिड। मीन्स दिस होल प्रोसेस विल टेक प्लेस इनसाइड द cytoplasm. I think I have not started this one. So after that you must know that there is another this according to this one। तो हम अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, स्पेशली 4th स्टेप की, इन विच वी हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर द स्प्लिटिंग ऑफ द fructose 1,6 biphosphate it will into the 2 triose phosphate molecules। One I have told you that is called the hydroxyacetone 3-phosphate and the पागल मीन्स पागल का मीनिंग बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, स्पेशली दैट इज कॉल्ड 1,3-biphosphoglycerate। पागल हम इसलिए बोल रहे हैं कि बाइफॉस्फोग्लाइसरेट PGL, राइट। PGA को ही हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड, राइट। आफ्टर दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द 3-phosphoglycerate विच कैन बी फॉर्मेशन ऑफ द ATP, और यहाँ पे ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर से फिर से विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, एंड due to this we can say generally in that particular condition it is another ways, this is the special process that we can say the substrate level of phosphorylation। अब substrate level of phosphorylation होता क्या है हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वी हैव टू नो दैट। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट का मतलब ये होता है स्पेशली बेटा कि जो हमारा ग्लूकोज सबस्ट्रेट हमने जिसको यूज़ किया है, तो जब उसको हम काहे में चेंज कर देंगे, उसमें एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, तो उसको ही हम कहेंगे क्या, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। जैसे मैंने आपको पहले फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। तो सिंपली अगर हम जनरल वे में बात करते हैं, ठीक, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें पता है, क्योंकि एडिनिन का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो लगभग आपको याद होगा ऐसा होगा, राइट, जिसमें एक तरफ एडिनिन ये जुड़ा होगा, दूसरी तरफ 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होंगे, राइट। लेकिन लेटर ऑन वन मोर फॉस्फेट ग्रुप कैन बी एडेड ओवर हेयर, वन मोर फॉस्फेट, तो ये जो बाउंडिंग होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस कंडीशन में जब पहली कंडीशन थी ये हमारी क्या थी, ADP की कंडीशन थी, राइट। लेकिन जैसे ही एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है इसमें, तो इसको हम कहते हैं क्या, ATP, राइट। और इसी प्रोसेस को वी कैन से दैट द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन विच कैन बी टेक प्लेस ओवर देयर। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ATP डायरेक्टली फ्रॉम द मेटाबोलाइट कंट्रीब्यूट्स, मीन्स हमारे जो सबस्ट्रेट हमने लिया है उससे डायरेक्ट ATP का बनना, ठीक, क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट यू मस्ट मेमोराइज दिस वन। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 7th स्टेप पे चलते हैं, तो इन दैट स्टेप वी कैन से द 3-phosphoglycerate, जो आपका 3-phosphoglycerate बना हुआ है हमारे पास, अगर आपने देखा होगा जैसे दो 3-PGA, राइट। तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी कैन से इन दैट द 3-phosphoglycerate कैन बी assimilized टू फॉर्म अ 2-phosphoglycerate, राइट। जो हम बार बार पागल कह रहे थे, पागल 1,3-pi फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड से एक ATP बना, तो उससे क्या हो गया, 3-PGA बन गया, यानी फॉस्फोग्लाइसिल एसीटेट बन गया। और उससे ही जब उसमें से एक और फॉस्फेट निकल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म द 2-PGA, दैट इज कॉल्ड द 2-phosphoglycerate catalyzed। जनरली इट कैन बी एट द टाइम ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड phosphoglycerate mutase,
And in eighth step we can say the presence of enzyme, especially enolase or and substances that is magnesium, राइट। उस मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि दे कैन कैपेबल टू लॉस देयर वाटर, जो अभी मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस टॉपिक में मीनिंग में, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ Mg प्लस, तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर दे कैन जस्ट रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, और जैसे ही वाटर इसमें से हटेगा, वाटर निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो इट कैन बी अगेन चेंज इनटू 2-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है इट कैन चेंजेज इनटू द फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट PEP, राइट। ये क्या भी चेंज हो जाता है, PEP में चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट वी कैन से द हाई एनर्जी ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कैन बी अगेन फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट इज ट्रांसफर्ड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ द ADP, और उसमें क्या होगा आपका जो ATP का मॉलिक्यूल जो होगा कैन बी चेंजेस अगेन स्पेशली विद द हेल्प ऑफ द पाइरुवेट काइनेज एंजाइम्स मैग्नीशियम एंड द पोटेशियम। इवनली वी कैन से दैट this phosphophenol can be again changes into the two molecule of the pyruvic acid or the pyruvate and the molecule of or a molecule of ATP by the substrate level of phosphorylation. So we can say the pyruvic acid thus produces the of the glycolysis. Especially with the help of this we can ultimately we will get the such structures, such products with the help of the glycolysis. Means ultimately we can get the total productions of the glycolysis, that is 2 molecule of the pyruvate कहो या फिर pyruvic acid हमको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसी की बात अगर हम आगे की बात करते हैं, राइट, तो जनरली हाउ दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इनटू द अनदर वेज स्पेशली इन द एनारोबिक कंडीशंस, राइट। अगर हम जनरली बात करेंगे कि एनारोबिक कंडीशन में ये कैसे ब्रेक करेगा, तो एनारोबिक कंडीशन में जिसे हमने कहा कि फर्मेंटेशन, अगर हम इसी प्रोसेस को मान लीजिए फर्मेंटेशन में भी कराएं तो जनरली ग्लाइकोलाइसिस तो वहाँ भी होती है। मीन्स जनरली वी कैन से स्पेशली इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स इन सब प्लांट्स, राइट, जब जनरली कैटाबोलाइज द पायरुविक एसिड इनटू द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जब ये ब्रेक करके कुछ अदर कंपाउंड्स में बनाती है तो वो कैसे डेवलप करेगा, तो उसके लिए भी सेम टू सेम भी कह सकते हैं जनरली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल को बनाना चाहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना चाहते हैं, स्पेशली इन द फंगाई दैट इज कॉल्ड ईस्ट, राइट, तो इन दैट, और किसी प्लांट से भी हो सकता है, तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी कैन से द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन का जनरली क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज there is a anaerobic condition, there is oxygen is not present over there. So due to that conditions, in that particular condition the pyruvic acid is converted into the carbon dioxide and the ethanol. जो हमारा ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, या जो पायरुविक एसिड होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें बदल जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो अगर हम उसकी स्टेप की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन की बेसिस पे सिंपली वी कैन गेट द पायरुविक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पायरुविक एसिड कैन बी डी कार्बोक्सिलाइटेड होगा, जो काय में चेंज होगा, एसिटाइल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और एसिटाइल एल्डिहाइड में चेंज होने का क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इट कैन एंजाइम पायरुविक एसिड कैन बी डी कार्बोक्सिलाइज हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें सिंपली जो हमारा जो पायरुविक एसिड होगा इट कैन बी डायरेक्टली चेंज इनटू द एसिड एल्डिहाइड, राइट। आफ्टर दैट दिस एसिड एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस्ड बाय द reduced to the ethyl alcohol or the ethanol in the presence of enzyme that is called the dehydrogenase enzyme। सिंपली अगर हम इसी रिएक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्टली आप लोग इसको आसानी से बना भी सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लूकोज को ग्लाइसिल एल्डिहाइड में बनाया, ग्लाइसिल एल्डिहाइड पायरुविक एसिड में बनाया, पायरुविक एसिड क्या है फॉस्फोफिनॉल में बनाया, और उसके बाद इसने क्या किया, इट कैन बी चेंजेस इनटू द एथेनॉल। और अगर मान लो ये कुछ अरेबिक कंडीशन में बनता है तो दूसरा लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के कराएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन में क्या होगा और चेंजेस आ जाएगा, राइट। सो दिस वे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन द वेज, राइट। साथ साथ में अगर लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन की प्रोसेस है वहाँ भी यही कंडीशन है कि जनरली दिस लैक्टिक एसिड विल
acid fermentation can be take place in the muscles, especially it may be bacteria or may some other organisms. So directly we can say whenever the reduction of the pyruvic acid can be produced into the glycolysis, it can be reduced by the NADPH2 to form a lactic acid, right, which can be when the when the generally the pyruvic acid can be glycolized, breakdown, it can be reduced into the NADH2, and especially that NADH2 can capable to form the lactic acid and the carbon dioxide, right, and स्पेशली जो हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें क्या होता है NADH2 होता है, तो क्या होता है लैक्टिक एसिड बनाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, लेकिन उसके बदले NADH2 कैन डायरेक्टली ऑक्सीडाइज इनटू द NAD, राइट, और उस NAD की होने की वजह से क्या होगा हमारा वहाँ पर जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से स्पेशली हम कह सकते हैं स्पेशली इन द एनिमल सेल्स, राइट, जब हैवी एक्सरसाइजेज होंगे तो इन दैट पर्टिकुलर तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे क्या होगा सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे pyruvic एसिड कैन बी रिड्यूसेस इनटू द एसिड दैट इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड लैक्टेट डिहाइड्रोऑक्सीजनेज, एंड ड्यू टू दिस we can say the both process, the oxidation and reduction of NADH plus H ions, they can be take place in with the help of some specific enzymes, right. Later on we can say the another thing, as I have told you about the alcoholic fermentations, then there is one more process that is called the aerobic respirations. I think everybody is known about this aerobic respiration, mean how this aerobic respiration will take place. Generally, as you can see, especially this aerobic respiration can complete the oxidation of the glucose and energy extractions, synthesize the ATP. It can be provide us. Only we can say the common higher organism take place within the mitochondria. जनरली ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ मिलेगी, अधिकतर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि for the formation of such energy we have to require the oxygen and release the carbon dioxide, water and a large amount of the energy present in that substrate। तो उसके लिए भी क्या है कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होगी, तो उस स्पेसिफिक प्रोसेस को कराने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि जनरली ये प्रोसेस आखिर होगी कहाँ। तो इसके लिए यू कैन जस्ट सी इन डायग्राम, सपोज ये हमारी एक सेल है और इस सेल में हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया डबल स्ट्रक्चर्स होता है, हम सबको पता है, राइट। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो यहाँ पर होगी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, और जो हमारी अनदर प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हायर एनर्जी लेवल ऑफ एटीपी फॉर्मेशन है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर केवल अप टू पायरुविक एसिड तक ही होगा। आफ्टर दैट दिस प्रोसेस कैन बी एंटर इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल होती है आपको पता है, एक आउटर वॉल होगी, इनर वॉल होगी, सर इसके अंदर क्या मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स के अंदर वो प्रोसेस हमारी डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से वी विल गेट द एनर्जी, राइट। सिंपली अगर हम बात करें, सिंपली जो कंडीशन बनती है तो उसमें हम कह सकते हैं कि देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अ लिंकिंग प्रोसेस, मीन्स जनरली इट कैन बी ऑलवेज हेल्पफुल टू लिंक बिटवीन बोथ। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होगी टीसीए साइकिल उसे बोला जाता है या क्रेब्स साइकिल बोला जाता है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दी एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल हमको वहाँ से अवेलेबल होंगे। तो वहाँ पर से पहले ग्लाइकोलाइसिस से हमारा एनएडीएच रिलीज होगा, जो एनएडीएच लेटर ऑन बाद में एटीपी एनर्जी को के रूप में भी चेंज कराने में हेल्प करता है। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली तो हम कह सकते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलाइजेशन ऑफ द पायरुविक एसिड, जब हमारा पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम लाइंस, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम कह सकते हैं जो पायरुविक एसिड है इट कैन बी एबल टू फॉर्म द glycolytic catabolism of the carbohydrate in the cell stool, or you can say that is oxidation or oxidative decarboxylation, means with the help of this they can capable to release one
कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो जो हमारे कार्बनिक सब्सटेंस है तो डेफिट है, वहाँ पर हमारे 3 कार्बनिक जो मॉलिक्यूल बना था हमारे पास पायरुविक एसिड का, इट कैन बी चेंजेस इन द CoA, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम, राइट। वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिटाइल CoA में चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा हम कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड कैन बी डी हाइड्रोजीनियस हो जाएगा, उसमें निकल जाएगा। और ये प्रोसेस हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम CoA with the help of NAD in the presence of the pyruvate dehydrogenase enzyme which can capable to synthesize acetyl coenzyme A and carbon dioxide and NADH plus hydrogen enzymes। तो इसकी मदद से we will capable to get the 2 molecule of NADH and the produces to break down 2 molecule of pyruvic acid to form a 1 glucose molecule during the glycolysis। में पूरी प्रोसेस के अंदर हमें टोटल इतने मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट मिल जाएगा, जिसकी मदद से आसानी से हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो एंटर कर जाएगी किसमें, TCA में। सो स्टूडेंट, वी विल टॉक दिस TCA टुमारो लेटर ऑन, and up to here you must complete this topic and try to understand this glycolysis process. Thank you.